नमस्कार 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 मेरा नाम है राजीव बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और उसके अलावा प्रदीप जी अभी तक जो यूफोरिया है चंद्रयान 3 का अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं सर, the hangover is going to last and last forever. अब तो प्रज्ञान 3 रोवर जो है वो तो अब घूम रहा है चंद्रमा के ऊपर और वहां से अब मुझे लग रहा है we'll स्टैम्प, हमारे एम्बलम, हमारे हर चीज चंदा मामे पर लग गया है। जी बिल्कुल। भारत देश का अशोक चक्र स्टैम्प, यस बिल्कुल, अशोक स्तंभ वो भी लग गया है सर। And I think this is really and truly wonderful, absolutely wonderful what has happened. So we are going to share the moon with four of us are going to share the moon. The United That's States, right. Russia, China and India. But the South Pole belongs to us. South Pole belongs to us. We have the first mover advantage. We were there first, right? After all, isn't that what the Europeans used to do? Finders keepers. They find the sea route to India and they say India belongs to us. They discovered the sea route to India. The Arabs, of course, had known of it for hundreds of years before, but Vasco da Gama discovered the sea route. That's what they say. Just like Christopher Columbus discovered America. The Native American Indians were already there for years and years and years, for thousands of years, and they've just been discovered according to the Europeans. So applying that principle, that part of the moon now belongs to India. Exactly, sir. तो वो तो भारत देश हो गया सर अपना एक और territory. I think it's bigger than the Bharat Desh. That's right. And even if you share the moon into 4 quarters, it's still quite huge. Yes, absolutely huge. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई अगर ठीक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं आ रहा तो चंद्रमा तो आ गया। तो इंडिया ऑक्यूपाइड मून, I think that will be the new term. Okay? But jokes apart, but the fact is I am so happy to see the entire nation come around, everybody's come around, everybody's right there and together in this achievement, which is absolutely fantastic. And I don't see any naysayers, I don't see any any of the stupidity which had gone on earlier. Even that gentleman called Prakash Raj, who plays a villain in Hindi movies and plays all sorts of other characters in Kannada and Telugu and Tamil movies. Has he done any Malayalam film? I don't know if he has. He has done here and there, बहुत सारे किए। जी। Now he is also turned around. He says proud to be Indian. I think he tweeted just the other day, yesterday. So the entire nation, nobody wants to hear in such a glorious, joyous moment. Nobody wants to hear negative things here. That's right. It goes against the thing. It goes against the essence of the great efforts of. It is one thing that we are all Indians and we are proud of this achievement, what ISRO has done. So when you do something, your hatred for some for the Prime Minister or your hatred for some leader, this is not an occasion to expose that, talk about it. It is good to talk about the achievements of this country. We were expecting that the icing on the cake would be that that young man, 18-year-old Pragnananda, would become the world champion in chess, but that has not happened, sadly. Magnus Carlsen has beaten him. He beat him in the first game, and in the second game it was a draw, so it was a 2-game tiebreaker. Would have gone on to the third game if Pragnananda had won the second game. It was a draw, so Magnus Carlsen is now world champion. And Pragnananda, our Pragnananda, 17 and a half years old, has the silver medal, which also is, by the way, a huge, huge achievement. On that, there is no doubt, which is fantastic. Chess, after quite some time, After Vishwanathan Anand? Yes. But Pragnananda says Vishy is still the best. That's what he says. That's very courteous and good about him. Very That's good. The way champions should behave. But Magnus Carlsen has always been a great champion. You never know with him because he never gives up. Usually he never offers a draw. The very first 2 games that he offered 2 draws was in itself should have been a warning that he's going to come back and come back very, very strongly. He played with white pieces and was actually able to defeat Pragnananda. And Pragnananda, by the way, took too much of time as his old coach Ramesh Rao, who's now coaching Norwegian chess prodigies. As he said, Pragnananda was taking too much of time on his moves because this was a time trial. This was fast chess. If he hadn't taken that much of time, if he had played very, very spontaneously, perhaps the result would have been different. But all the same, it's a great achievement
he has defeated at least 4 grandmasters who were higher ranked than him. Four grandmasters who were higher ranked than him, and has reached the final. And in the final, he has lost to the man who's considered to be the best chess champion in a long time, since Bobby Fischer. So it's fantastic. Anatoly Karpov, Kasparov. Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Yes. and of course the great Bobby Fischer. And there were times when they were continuously winning year after year, year after year, year after year. Everybody still remembers that great battle between Viktor Korchnoi and Anatoly Karpov. Of course, Kasparov came and just blew Karpov away. Yes. But then along came Vishwanathan Anand and defeated everybody. But lots of time left for both Magnus Carlsen, who's also, by the way, a very young man, and Praggnanandhaa. So both. So Indians We'll see a lot of in them. every field slowly inching their way up. And not only that, Pradeep ji, And दूसरी बात making a क्या है? mark. दूसरी बात क्या है? जो चेस चैंपियनशिप की कैंडिडेट्स चैंपियन होती है, which is considered to be the best, which is considered to be the biggest of all. Now Praggnanandhaa, because of the fact that he reached the finals, both Magnus Carlsen and Praggnanandhaa have got direct entry into the candidates championship, which by the way is bigger than the world championship. Okay. So which is fantastic. So two great things which have happened for India. One of course is the Chandrayaan 3, and 2, Praggnanandhaa of India is now the silver medalist in the World Chess Championship. And both have made us all very, very proud. And at the moment with us from the BJP, our old friend Mr. Lakshman Saoji. Lakshman Saoji साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Lakshman Saoji साहब नमस्कार. नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता जय की हिंद. जय. जबरदस्त सर, वंदे मातरम. मतलब वंदे मातरम. खुशी चेहरे पर एकदम खिलकर बाहर निकला है. सर, हर हिंदुस्तानी के शक्ल पर खुशी है सर. अभी तो मतलब जो इसरो ने करके दिखाया है, मतलब उससे तो क्या कहें सर, मतलब कोई शब्द नहीं है. भाजपा सर वाले- खुशी भाजपा वाले अधिक खुशी खुशी इस बात की है कि कुछ देशों के झंडे पर सिर्फ चांद है, जी. हमारा झंडा चांद पर है, हमारा झंडा चांद पर है. बिल्कुल तिरंगा. जबरदस्त, जबरदस्त. कुछ देशों के झंडे इसलिए- पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है. और किस तरफ इशारा है समझ लो. लेकिन सर ये तो मानना पड़ेगा, जबरदस्त हुआ है जो कुछ हुआ है. मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जितनी प्रशंसा की बिल्कुल जाए कम है. बिल्कुल. यस. और अब इट डजंट एंड हियर. अभी तो क्या है कि वो प्रज्ञान रोवर अब घूम रहा है, उसने पहला एक्सपेरिमेंट भी आज शुरू कर दिया है, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन, फोटोग्राफ्स आर कमिंग इन, द विक्रम लैंडर इज ऑलरेडी देयर. And by the way, the job of these three, the propulsion unit which is still circling around the moon, the Vikram lander and the Pragyan rover is not over yet. अगले 15 दिन के लिए ये ऐसे ही चलता रहेगा. 15 दिन के बाद जो प्रज्ञान रोवर है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब सूरज जो है, सूरज की रोशनी उस पर पड़नी बंद हो जाएगी, तो सोलर सेल्स विल क्लोज. सो दिस बाय द वे वाज द ओनली डे ऑन विच वी कुड लैंड ऑन द मून. आप ये देखिए सर, चांद पर 23 अगस्त को इसी वक्त लैंड करना बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि इट वाज द स्टार्ट ऑफ द लूनर डे. क्योंकि एक लूनर डे जो होता है, चंद्रमा का एक दिन जो होता है, धरती के 15 दिन के बराबर होता है. चलो बराबर. तो ये यहां पर लैंड करना बहुत जरूरी. और अगर आप सारे दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं उनको देखिए, हर एक को ये कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंड करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इसलिए आज तक किसी ने कोशिश नहीं की. 2 देशों ने कोशिश की. एक रशिया ने. दुखद बात यह है कि उनका जो लूना 25 था वो क्रैश हो गया. और भारत का पहला चंद्रयान 2 जो था वो सक्सेसफुल सफल नहीं हो पाया. लेकिन चंद्रयान 3 के साथ जो हमने सफलता पाई है, जबरदस्त है. सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप अपनी दिल की बात कहें सर प्लीज. एक तो हमारे लिए ये विश्व में जो हमारी प्रतिमा जिस तरह से ऊंची हो रही है, उसके लिए इस समय ये होना, ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है. एक तो हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं जी. G20 का अध्यक्ष पद हमारे पास है. जी.
पूरे विश्व के सारे देश हमारे तरफ कुछ उम्मीद लेकर देख रहे हैं। जी कोई दो देशों में कोई झगड़ा होता है तो मध्यस्थता हमारी स्वीकार्य है दोनों भी देशों को। इस समय जो विश्व में जो हमारी प्रतिमा छा गई है सब तरफ से, कि चाहे कुछ भी हो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरफ से रफ्तार से विकास की तरफ दौड़ रहा है, उस समय में यह होना, यह हमारे देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात है। क्योंकि प्रयास करने के बाद प्रयास की यशस्विता, ये इसमें जो सफलता की यशस्विता है, तो हमारे लिए ज्यादा बहुत गर्व की बात है। इसमें टीम वर्क दिखाई दिया। जिन जिन लोगों में, जिन जिन संस्थाओं ने इसके पीछे कष्ट किए थे, मेहनत की थी, तो उसके बावजूद अभी जैसा आपने अभी बोला कि दक्षिण ध्रुव पर पहला देश है कि जहां जिसने प्रयास किया और यशस्वी हुआ। तो अंतरिक्षीय अनुसंधान के बारे में जो हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला इसके लिए, किसके आगे जो सृष्टि का जो स्टडी होना चाहिए, ब्रह्मांड का जो अभ्यास होना चाहिए आने वाले पीढ़ी के लिए, हम इतने इसके जो जिस संगठन से हम जा रहे हैं, हमारा ये भारतीय अनुसंधान जो इसरो अंतरिक्ष का जो है जी, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात तो है ही, लेकिन एक डेवलपमेंट के लिए जो सदियों से इसके बारे में जो कुछ खोज होने बाकी है या इसके गहरे से खोज होना जरूरी है, तो इसके लिए साइंस की तरफ हम सिर्फ, जैसा हमारे तरफ एक स्पिरिचुअल देश बोल के देखा जाता है, तो हम साइंस भी उतना ही आगे हमारा प्रगतिशील पहले से था और अभी भी आगे रहेगा। इसके लिए एक अच्छी तरह से सबक नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन अच्छा सफलता वाला प्रयास, यशस्विता वाला प्रयास, ऐसे इसके बारे में हम कह सकते हैं। साहू जी साहब, बीजेपी का कहना है कि अभी इसरो सिर्फ खर्च नहीं करता, इसरो पैसा भी देश के लिए कमा के दे रहा है। इसरो 157 मिलियन US$ के तरफ से रेवेन्यू अर्न किया, इनकम अर्न किया है इसरो, और यूरोज 223 मिलियन यूरोज इसरो ने बनाया इस देश विदेश के अलग अलग सैटेलाइट ऊपर भेज के। तो बीजेपी का कहना है कि एक प्रॉफिट सेंटर बन गया इसरो पैसा कमा के दे रहा है देश को, खुद भी पैसा कमा रहा है। पर कांग्रेस का कहना, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, फिर उसके बाद होमी बाबा का, इंदिरा गांधी का, राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, चंद्रयान 1 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो ये एक विशाल चीज है, बोले कि सिर्फ मोदी जी तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये शुरुआत पंडित नेहरू जी ने किया है। साहू जी साहब, नहीं, बात ऐसी है, इसके लिए जिन्होंने अतीत में, इतिहास में जिन्होंने काम किया है उनका तो गौरव होना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं ना बात। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी वर्तमान में जिस तरह से हम जा रहे हैं, वर्तमान में मोदी जी का नाम क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जिस समय नेहरू जी ने किया, उस वक्त जो विरोधी दल थे उन्होंने उसका स्वागत किया था जी। 50 साल विरोधी दल में जब हम थे, तो राष्ट्रीय चेतना के जहां भी स्वर निकले, हम उनके समर्थन ही किया, उसको विरोध नहीं किया। चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, या कोई साइंटिस्ट हो, या कोई भी मिशन हो, तो ऐसे कोई नेशनल मिशन को विरोधी दल के नाते हमने कोई विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया और उसका सम्मान किया। आज के विरोधी दल जिस तरह से सामने पेश आ रहे हैं पब्लिक के सामने, तो ये ज्यादा बोलना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, ये दर्शाना पड़ता है। ये दर्शाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन विरोधी दल दूसरे जिस तरफ से हमारे भारत को पीछे लेके जा रहे हैं, क्या जिस नेहरू जी ने, अगर आप इसके अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में कुछ प्रयास करे होंगे, वही नेहरू जी की कांग्रेस आज अगर डुप्लीकेट चैलेंज छपवाती है, प्रिंटिंग करती है, तो उसका समर्थन कैसे हो सकता है?
देश के सामने समस्या है, जिन्होंने जिन्होंने पैदा किया। आतंकवाद किसने निर्माण किया? आतंकवाद को बढ़ावा कौन देता है? मणिपुर की समस्या किसने की है? चाइना के बारे में क्या रुख है इनका? तो ये सब जब सामने चीजें आती है तो इसके लिए मोदी जी का नाम, शीर्षस्थ नेतृत्व जो आज देश के लिए सोच रहा है, इसके लिए उसका इसके डिस्कशन में नाम लेना पड़ता है, लोगों के सामने डिस्कशन में बोलना पड़ता है। ये इनके प्रचार के लिए बोलते नहीं है कोई, हर कोई चीज प्रचार के लिए नहीं होती, लेकिन जो वास्तव है तो वो तो दिखाना पड़ेगा सबके सामने। दुरुस्त बात है, उसमें क्या? दुरुस्त बात है। लेकिन सौजी साहब यहां पर ये बताइए कि यहां पर ये सब बातें बोलने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। कौन से? नहीं, ये बात ऐसी है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। पिछले इतिहास में नेहरू जी ने किया, ये अगर बात करते हैं, अगर ये बात होती है तो नेहरू जी ने प्लस क्या किया, माइनस क्या किया, दोनों भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिर प्लस क्या किया, ये बात क्यों होती है? ठीक है, वहां तक तो ठीक है, उसके आगे मोदी जी को नीचा दिखाने की बात क्यों हो? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा भाई। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। विरोधी दल वाले जब बात करते हैं तो इसमें मोदी जी का क्या है जी? ये जब कहते हैं तो उसके बारे में ये फिर हमको सामने कहना पड़ता है। करेक्ट, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। दुरुस्त बात है, लेकिन ये बंद होना चाहिए ना। जब राष्ट्र के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री जी है, अगर कोई भी एक अच्छा काम होता है तो उसके प्रमुख को अच्छा बोलने में दिक्कत क्या है? दुरुस्त बात। तो अच्छा बोलने के बजाय बुरा बोलेंगे तो फिर दूसरी भी चीज सामने आ जाती है। ये नहीं आनी चाहिए ऐसे समय पे, हम भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब मोदी जी ने बोला 140 साहब, हाँ। जब इसरो अलग नाम से स्थापित हुई, उस वक्त इसरो का नाम नहीं था, वो इंदिरा जी ने नाम दिया इसरो। हाँ। तब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए पंडित नेहरू को हम लोग क्रेडिट देते हैं, श्रेय उनको मिलता है कि आपने शुरू किया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और जिनका योगदान है उनको सैल्यूट है उसमें जी। तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें पंडित नेहरू का क्या है। जब आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, या इनसैट 2B जब लॉन्च हुआ, या 2A जब लॉन्च हुआ, किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा इसमें इंदिरा गांधी का क्या है। ऐसे किसी ने नहीं बोला। तो आज ये कहने की जरूरत क्या है कि मोदी का क्या है? मेरा कहना यही था कि जब हम विरोधी दल थे तो हम राष्ट्रीय सम्मान की जब चर्चा करते थे तो हम कोई उसमें राजनीति नहीं करते थे, और आज के विरोधी दल जो कर रहे हो राष्ट्र की चेतना की सर डर गए, नीचा दिखा रहे हैं उसको। ये ठीक नहीं, डर गए उसमें ये डर का माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब ये चंद्रयान 3 ये भी हो गया, अब इसका भी क्रेडिट मोदी जी को मिल जाएगा। तो मतलब चुनाव में आप पता नहीं 300 सीट लेकर आएंगे, 350 सीट लेकर आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना उनको। क्या कहेंगे? नहीं, ये मुद्दा राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आई एग्री सर, ये गौरव की बात है, राष्ट्र गौरव की बात है, हर एक की सम्मान की बात में इसे रूलिंग और ऑपोजिशन ये बातें नहीं हो सकती। दुरुस्त बात। अमित शाह जी ने I think we've lost him. I think we've just lost Mr. Saudi. We'll try and get him back. दरवाजे उड़ पे। Right. I think the light has gone off over there. Yes. जी साजी साहब, जो रोशनी लाइट जरा बंद हो गई है वहां पे, क्या लाइट हाँ, है? ये आ गई। पावर कट हुआ है वहां पे। हाँ, थोड़ा ये पावर कट कैसे हो गया सर? देवेंद्र फडणवीस के राज में पावर कट ये कैसे हो गया? आएगा। तो अमित शाह जी ने कांग्रेस को यही पूछा कि आप 50 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करो, 50 साल के रिपोर्ट कार्ड लेके आप पूरे देशवासियों के सामने बोलो कि आपने क्या किया। बोले कि मोदी साहब ने रिपोर्ट कार्ड लेके पूरे देश में हर गली में हर घर में जाके दिखा रहे कि हमने क्या किया। हमने 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हमने बना दिया, डिजिटल रेवोल्यूशन हमने किया, हमने आर्टिकल 370 करके कश्मीर को जोड़ दिया। तो अमित शाह जी ने पूरे लिस्ट पढ़ा दिया, गरीब कल्याण योजनाओं का लिस्ट भी पढ़ा दिए। अभी वो बोलते कि अभी आपका काम है, और बोले कि हमारा नेता देखो किस प्रकार से। अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब जीत के जब पार्लियामेंट जाता है तो अपना माथा सर झुकाकर माथा उस पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर टेक के आशीर्वाद लेकर अंदर जाता है पार्लियामेंट का, ये उनका है। और जो गरीब सफाई कामगार गर्व से उनके पैर अपने ही हाथों से धोता है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा मोदी साहब है। अमित शाह जी का कहना है। अमित शाह जी ने चैलेंज किया है मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि आप
50 साल का रिपोर्ट लेकर सामने आए। तो ये चैलेंज वाली बात क्यों है साहू जी साहब, ये चैलेंज क्यों है? नहीं सर, ये चैलेंज क्यों है कि हमको ये पूरा विश्वास है कि हमने जनता के लिए जो कुछ किया है, हम सीना तान के डंके की चोट पर जाके कह सकते हैं ये हमने किया है। और ये सब हम करने के बाद हमने कुछ किया नहीं है, जब ये वो बोलते हैं सामने वाले, तो उनको यही जवाब हो सकता है आपने क्या किया वो बताओ। ये लोगों के सामने जाकर बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्या किया है वो दूसरी बार फिर सामने आएगा। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट क्या किया यही बोल रहे हैं 4 साल से 9 साल से, उन्होंने क्या किया ये बताते नहीं है। क्योंकि उनका जो स्कैम का जो इतिहास है, पूरे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के 10 साल में जो कुछ स्कैम हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर वो सामने आएगा तो लोग इनके सामने जाएंगे क्या? पब्लिक के सामने कांग्रेस वाले जा ही नहीं सकते, ये हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमने जो कुछ विकास काम किए हैं, जो डेवलपमेंट की रफ्तार ली है, उसके बारे में हम जनता के सामने जा सकते हैं, कांग्रेस वाले जा नहीं सकते सीना तान के। दुरुस्त बात। लेकिन यहां पर दूसरी चीज ये आती है कि सबको ये बहुत ही जबरदस्त लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में, वहां से उन्होंने सैटेलाइट लिंक द्वारा ज्वाइन किया इसरो को, और वहां उनको मतलब बधाई दी, जबरदस्त है। लेकिन सर मैं यहां पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपको मालूम है जो प्रज्ञान रोवर है और उसके पहले जो विक्रम लैंडर है, उससे जो तस्वीरें आ रही हैं वो जबरदस्त 5G या 6G में आ रही हैं। बराबर। तो ये 5G 6G हमें कब मिलेगा सर? धरती में भी तो आना चाहिए। नहीं आएगा ना, अभी इतना सब किया है तो वो भी हो जाएगा जी, क्योंकि वो होने के लिए तो ये किया है। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन इससे एक चीज है कि पूरे देश का हौसला बहुत बड़ा है, जबरदस्त हुआ, इस पे कोई दो राय नहीं है, और इस चीज को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये हौसला जो सर इससे आम आदमी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है इसके लिए जी। ये जो राष्ट्रीयत्व जो दिल में रहता, हमने हर घर तिरंगा का अभी आपने अभियान लिया जी, तो जब हम तिरंगा फहराएंगे तो राष्ट्र के बारे में मन में चेतना जब उठेगी ना, तो ये जरा सीना तान के आम आदमी घूमेगा इसके लिए। दुरुस्त बात। एक आत्मविश्वास बढ़ गया आम आदमी का, और पूरी दुनिया ने इसको सराहा सर, पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है। मतलब कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसने इसकी प्रशंसा नहीं करी होगी, और तो और ये हमारे पड़ोसी देश जो है उन्होंने भी प्रशंसा करी है। सबसे बड़ी बात ये, विच इज फैंटास्टिक, मतलब जबरदस्त है ये तो। वाह, इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक। जी साहू जी साहब, अनियन जो कांदा है, कांदा में पीयूष गोयल जी, देवेंद्र फडणवीस जापान से ऐलान कर दिया कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से अनियन जो सरकार खरीद रहे 2,410 रुपया पर क्विंटल, ये रेवोल्यूशन है। पीयूष गोयल का कहना था, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना था, शरद पवार जी और बाकी जो है लोग उनका विरोध कर रहे, बोले कि एक तो मैं भी एग्रीकल्चर कृषि मंत्री था, मगर 40% जो एक्सपोर्ट पे इन्होंने टैक्स हाइक किया है वो गलत है, ये तो हम लोग कर दिया, मैं कभी अलाउ नहीं कर। शरद पवार जी का कहना है कि ये गलत है, और आगे जाके शरद पवार जी कर रहे हैं कि अभी देखो शक्कर में भी इन लोग बढ़ाने वाले हैं। कांदा में जिस प्रकार से लोगों किसान को तकलीफ दिया, उधर शक्कर में भी प्रॉब्लम करने वाले, पवार साहब का कहना है। तो शरद पवार साहब इस प्रकार से इस चीज को, जो देवेंद्र फडणवीस जी, पीयूष गोयल जी सब कहते हैं कि अच्छा काम है, कांदा इस रेट पे खरीद लिया, आश्वासन है सबको मिलेगा, टमाटर पे काबू पाया है, 40 रुपया तक लेके आए हैं उन्होंने, स्टेबलाइज कर दिया 40 रुपया पर किलो टमाटर का। तो पवार साहब का क्यों विरोध है, शरद पवार साहब का? साहू जी साहब, शरद पवार क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं ऐसा है, आदरणीय शरद पवार जी की जो उम्र है ना 83 हो गई साहब अभी, उनको लोग बहुत मानते थे उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से। उनके 50-60 साल की जो राजनीति में व्यतीत किए उन्होंने, उसके लिए उनका बहुत इज्जत था। लेकिन जब उनके पास मंत्रालय आया, मिनिस्ट्री आया, तो कृषि मंत्री थे। अभी उस समय एक्सपोर्ट बंद था साहब। हेलो जी, एक्सपोर्ट बंद था, याद है मुझे जी। ये निर्यात शुल्क के बारे में जब ये चर्चा करते हैं तो इनके लिए इनकी निर्यात ही नहीं होती थी, इनका एक्सपोर्ट बंद था पूरा। करेक्ट। इसके बारे में बोलना चाहिए उन्होंने, वो एक्सपोर्ट बंद करने का उनका क्या समर्थन है उसका उस समय का, उसके लिए क्या वो चर्चा कर सकते हैं। और बात ऐसी है कि उनके पूरे जिंदगी में 24 से 10 रुपए प्याज का भाव ये पहली बार मिला है। लेकिन सर ये जो
ये जो रेट दिया है प्याज का, शरद पवार जी के जिंदगी में उन्होंने किसान के लिए इतना नहीं किया है। लेकिन सौजी साहब एक चीज आप भूल गए, हाँ निर्यात तो बंद था, हाँ लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से प्याज का आयात किया गया, बराबर है, पाकिस्तान से अनियंस इंपोर्ट किए गए। बराबर है। नहीं नहीं वो भी बात है, लेकिन किसान के बारे में, खेती के बारे में जो 9 साल से मोदी जी ने जितना कुछ किया है ना, इन्होंने शरद पवार जी ने जिंदगी में नहीं किया है। सर वो कहते हैं कि मिनिमम 40 रुपए पर किलो यानी 4,000 रुपए पर क्विंटल का रेट होना चाहिए। उनको 2,410 अभी में कुछ नहीं होगा। ऐसा है, जब उनके कार्यकाल में 300, 350, 400, 450, 600, 750, 700 इसके ऊपर रेट नहीं गया, 900 के ऊपर कभी रेट नहीं गया उनके कार्यकाल में। उनकी नैतिकता नहीं है इसके बारे में चर्चा करने की। अभी उनको इतनी निराशा आ गई है, इतनी निराशा आ गई है कि उनको सामने सब भविष्य दिख रहा है, हो के क्या होगा। इसलिए सिर्फ विरोध जताना, विरोध जताना, विरोध जताना, यही वो जानते हैं, असलियत का सामना नहीं कर सकते हैं वो। जी, मतलब 2,410 रुपए प्रति क्विंटल सबसे बड़ी प्राइस दी है आज तक सरकार ने, ये कहना है। जी दुरुस्त बात है। लाइट इज कम बैक। और सिर्फ प्राइस नहीं दी है, उसका परचेज भी, खरीदी भी हो रही है। जी हो रही। 500 मीट्रिक टन अभी तक खरीद लिए गए हैं, ऐसा हाँ। एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है। टोटल 2 लाख मीट्रिक टन खरीदने का वादा है इसके लिए, बराबर है जी, 2 लाख कर दिए जी। और 2,410 रुपए जो है, विच इज ट्रू बाय द वे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बाय द वे इट इज द हाईएस्ट प्राइस। इससे ज्यादा कभी प्राइस जो हमारे नासिक के जो हमारे सांसद है और मंत्री भी है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो डॉक्टर भारती पवार जी है ना, जैसे इस मामले को विरोधी दल ने उठाने को शुरू कर दिया, उससे पहले से हम सजग है इस मामले में, क्योंकि विरोधी दल की असलियत क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। और पहले क्षण से लेकर इस किसान को, प्याज के इसको खेती को न्याय देने के लिए पहले क्षण से हम उनके साथ में हैं। हम सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है इसमें। अमेजिंग। लेकिन पवार साहब जो हैं तो फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ। नहीं, पवार साहब का ये तो उनका जो स्टेटमेंट है और उनका जो इसका रवैया है, हमको सब शर्म आती है इसके बारे में, शरद पवार जी के बारे में बात करने के लिए। तो लेकिन पवार साहब को मालूम नहीं है कि लोग रिसर्च तो करते हैं ना, लोगों को मालूम तो है ना क्या हुआ, किसके टाइम पे क्या हुआ। नहीं, वो निराशा में बहुत अंदर गहराई में गए, निराशा के शरद पवार जी। और पहली बार हम लोगों ने देखा, प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने बताया कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि उन्होंने, वो कौन है, धनंजय मुंडे, उसके बारे में कोई और बात कही कि बड़ी महिलाओं से कंप्लेंट आ रही है वगैरह वगैरह, ये सब भी कहा पवार साहब। पहली बार लाइफ में पवार साहब को मैंने ऐसे बात करते देखा, मेरे ऐसे बात नहीं करते क्या कैसे समझेंगे इनको। कल तक जो इनके चेले बोल के जाने जाते थे, कल तक इनके सहयोगी जाने जाते थे, कल तक इनके दल के नेता जाने जाते थे, और 1 महीने में ऐसा क्या हो गया बिल्कुल कि एकदम सामने आ गए, तो सब किताबें फाड़ कर बोल रहे हैं। शरद पवार जी के जो तजुर्बा है राजनीतिक, जिनका उतना अनुभव है, जितनी इनकी लंबी आयु है, उनके हिसाब से उन्होंने ये करना डेमोक्रेसी के लिए, उनके छवि के लिए ये अच्छा नहीं है। सावजी साहब, सुप्रिया सुले जी बोलने लगे कि बीजेपी 3 बार पहले भी इस एनसीपी को तोड़ने का कोशिश किया था। बीजेपी कंटिन्यूसली, चाहे वो 2014 हो, 2018 हो, तो कंटिन्यूसली 3 बार कोशिश किए थे बीजेपी तोड़ने के लिए। और यही देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से कहते हैं कि हम साम धाम दंड भेद, तो साम धाम दंड भेद का उपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो बोले कि ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुप्रिया सुले का कहना है कि जिस प्रकार से पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में सबको जोड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। सावजी साहब, नहीं, बात ऐसी है जी। ये सरासर झूठी है कि हम कोई पार्टी तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल तोड़ने के लिए कोई ये नहीं है, तैयार नहीं, हम नहीं तोड़ते। उनके इसमें जो आपस में जो कुछ चल रहा होता है, वो जब सामने आता है, तो जब सामने आएगा तो हम तो रूलिंग पार्टी है, वो लोग हमारे पास आएंगे ना।
तो हम क्या करेंगे उसको? हम उनको स्वीकारने नहीं चाहिए। ऐसा कैसा होगा? जब राजनीति में 51-49% पे जब राजनीति चलती है, सत्ता पे चलती है, तो इन्होंने सरकार किस लिए बनाया था? जब हमको क्लियर मैंडेट होने के बावजूद इन्होंने सरकार क्यों बनाया था? अभी हम सरकार बना रहे हैं और हमको कोई लोग आके जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको हमारे काम के लिए उनका विश्वास बढ़ गया है, मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास बढ़ गया है, देवेंद्र जी फडणवीस के ऊपर विश्वास बढ़ा है, भाजपा की तरफ विश्वास बढ़ गया है, और कुछ अच्छा कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं। ये विश्वास उनमें आने के बाद अगर वो हमारे पास आएंगे तो उसमें उनकी पार्टी टूटी है न टूटी, इससे हमको क्या मतलब है? लेकिन हम कोई पार्टी तोड़ते नहीं साहब, लेकिन एक चीज तो है, आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बात करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, मेरी समझ में, मेरी खुद की ये व्यक्तिगत राय है, और मैं इस विचार को न जाने कितनी बार यहाँ पे व्यक्त कर चुका हूँ, हर जगह पे व्यक्त कर चुका हूँ। आज जो महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से चल रही है। जो उनका विश्वास है और जो विश्वास के पात्र हैं और जो बैलेंस करके वो चल रहे हैं, मतलब सही बात, प्रशंसनीय है साहब। ही इज द ग्लू विच बाइंड्स दिस गवर्नमेंट टुगेदर। तो उनको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है सर। सबको साथ लेकर चलने का जो उनका रवैया है जी, जितना संयमित नेता है, वो सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता है जी, ये बार बार दिखाई दी गई है। 5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद तो रोज एक नया संकट उनके सामने इन लोगों ने पैदा किया था। उसमें शरद पवार बहुत अग्रसर थे, रोज अलग अलग मामला लेकर सामने लोगों के लिए चैलेंज देते थे, लेकिन वो उन्होंने एक अवसर बोल के देवेंद्र जी ने उसको निभाया जी। उसको चैलेंज के भी समझे नहीं, उसको अवसर मिला, उसके ऊपर और वो छा गए और परिस्थिति हैंडल करने के लिए और वो मजबूत हो गए। और वो मुख्यमंत्री होते हुए जितने संकट आए, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं होते हुए अभी तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। सर असली मुख्यमंत्री तो वही हैं, भले आप जो मर्जी नहीं सब हम चर्चा में ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, जो है वो है। मुख्यमंत्री जी शिंदे है जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है और अजीत दादा जी है, वो तो है अभी सरकार। सावजी साहब, आपने वोटर चेतना अभियान शुरू किया, आप लोगों से बाकी सब पार्टी से पहले लोगों तक पहुंचने का क्षमता चालू कर दिया है। आप घर घर जा रहे हो, अब घर घर जा रहे हो, फॉर्म 6 भरो, फॉर्म 7 भरो, फॉर्म, ये अचानक मोदी साहब ने ये क्यों, क्या हो गया सावजी साहब अचानक? सब बात ऐसी है। हाँ। आप देखो 2014 में प्रधानमंत्री जी जब मोदी बन गए, अमित शाह जी अध्यक्ष थे। अमित शाह जी से पहले हमारे नितिन जी गडकरी थे, उनसे पहले भी अध्यक्ष थे। हमारा संगठन लगातार चलते रहे। हम 365 दिन चलाने वाले संगठन वाले लोग हैं। 365 दिन संगठन चलाते, सिर्फ सत्ता के लिए, चुनाव के लिए कोई संगठन नहीं चलाते हमारे। ये एक भी दिन हमारा संगठन बंद नहीं। बूथ तक का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो, कोई सेल का फ्रंट का कार्यकर्ता हो, कोई जिले तालुका का, तहसील का, या कोई जिले का, या स्टेट का, कोई सेंट्रल का, कोई हमारा मंत्री भी कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं, हमारे सांसद भी कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं। अभी हमारे जो एमएलए है, 100 के ऊपर एमएलए महाराष्ट्र में जो हमारे है ना, उनको हर एक विधानसभा एमपी में जाओ स्टडी करने के लिए, वहां का माहौल क्या है, वहां का समाज जीवन क्या कहता है, उनका वहां सरकार के बारे में क्या राय है, वहां कैसा काम चल रहा है, ये सब देखने के लिए ये हमारा जितना भी आदमी बड़ा होने दो, वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। ये पूरे विश्व में अगर कोई संगठन ऐसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हम चुनाव के लिए संगठन नहीं है हमारा। इसलिए मतदार चेतना जो रैली अभियान जो हम बनाने जा रहे हैं, मतदार चेतना क्या साहब, हमारे डेमोक्रेसी में वोटर को उसकी नाम की स्लिप लिख देने का पहला प्रयोग जनसंघ ने किया महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में। यह आज का नहीं है। मतदाता का सम्मान होना चाहिए, यह हमने जनसंघ ने सिखाया पूरे राष्ट्रीय ये दलों को, राजकीय पॉलिटिकल दलों को। सर आपने ये तो इनको क्या, कांग्रेस वाले कभी मतदाता के तरफ जाते नहीं थे। सर आपने संघ की बात करी, चलिए जनसंघ की बात करी, लेकिन मैं जरा आरएसएस की बात करता हूं। राज ठाकरे हों, हमारे किशोर तिवारी जी हों, अन्य कांग्रेस के नेता हों, स्पेशली राज ठाकरे जी तो ये बोलते हैं कि तुम अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते भाई, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है। आज की तारीख में अगर बीजेपी को देखो तो उसमें कोई बीजेपी वाला दिखता ही नहीं है। सारे पुराने कांग्रेस के हैं या एनसीपी के हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं। और इससे और ये भी कहा जाता है कि आरएसएस बहुत नाराज है इससे। नहीं, देखो साहब,
इसमें आरएसएस नाराज नहीं है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, पहले संगठन छोटा था, पहले छोटी मात्रा में हमको विजय हासिल होता था, जी अभी हम 400 प्लस की तरफ अगर 400 राष्ट्रीय plus। आंकड़े की तरफ जा रहे जी। हैं तो सब लोग हमारे साथ आएंगे। जी तो सब लोग जब हमारे साथ आएंगे तो आए दिखने भी चाहिए। ऐसा कैसा होगा? पर्दे के पीछे हम हैं, आपके साथ है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग आते हैं उनका सम्मान, उनको फ्रंट पर लाना, उनको लीडरशिप देना, उनको व्यासपीठ देना, उनको पदाधिकारी बनाना, उनको विश्वास में लेना। अच्छा, एक सबका चीज तो बता साथ, दें सबका सर। विश्वास। चलते चलते एक चीज तो बता दो, पता नहीं इस पे बोलेंगे कि नहीं आप, थोड़ा सा जरा मजाकिया सवाल है, पता नहीं आप हंसेंगे आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कांग्रेस के लोगों को, बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप काले कपड़े पहन के आए। हाँ। कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसको काला टीका लगा दिया जाता है कि हाँ। नजर वटू होता है, नजर ना लगे। और भारतीय जनता पार्टी की ही चेयर्स में साथ में अमित शाह जी के साथ बैठे हुए नितिन गडकरी जी ने भी काले कपड़े पहने हुए थे। ये क्या बात है सर, ये जरा बता दें। अभी अभी आप जो बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन में ये आंसर है। अगर नजर न लगने के काला टिक्का है तो इसलिए नितिन गडकरी जी तो ने यही समझो। प्रधानमंत्री को नजर ना लगे इसलिए काले कपड़े पहने हुए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री क्यों, संसद भवन को नजर न लगे? हमको सेंट्रल विस्टा में जाना है, करेक्ट, तो आगे की सोच है उसमें। वेरी गुड। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एक बार फिर मुबारकबाद आपको, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। पूरा देश Yes, बहुत sir. खुश है सर, आज सब लोग बहुत खुश हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। Yes, thank you. इसलिए आपकी शक्ल से मुस्कान नहीं जा रही प्रदीप जी, और मेरी शक्ल से भी मुस्कान नहीं जा रही है आज। क्या बताएं, बहुत जबरदस्त नहीं, है सर। नमस्कार सर, इसमें तो हम वक्ता, प्रवक्ता और चैनलिस्ट, ऐसे इसमें तो हमारे तीनों की एक ही राय है। बिल्कुल एक राय सर, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, इसके बारे में कोई शक नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।